اللہ نور السماوات والارض۔ آپ کے ہاتھ میں جو فون ہے، کیا یہ صرف ایک ڈیوائس ہے یا پھر ایک بیٹل فیلڈ ہے جہاں ہر روز انجانے طور پر آپ کے ایمان پر اٹیک ہو رہا ہے؟ شیطان کی سب سے ہوشیار سٹریٹجیز اب کوڈ اور الگوریتھمز کی شکل میں آتی ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ ڈیجیٹل دنیا، یہ سوشل میڈیا اور یہ انٹرنیٹ صرف کنوینئنس کے لیے ہے، یا پھر یہ ایک ایسی ٹریپ ہے جو آپ کے وقت، آپ کی سوچ اور آپ کے دلوں میں وسوسہ پلانٹ کر رہی ہے؟ اور کیا آپ ان 7 سب سے بڑے ڈیجیٹل فتنوں سے بچ پا رہے ہیں جو ہر مسلمان کو دھیرے دھیرے ویک کرنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں؟ یہ وہ دھوکے ہیں جو آپ کی روح کو سائلنٹلی کھوکھلا کر رہے ہیں، اور آج ہم ان کا پردہ فاش کریں گے۔ کیا آپ ریڈی ہیں اپنی نظر اور دل دونوں کھولنے کے لیے؟ تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے، کیونکہ جو بات آخر میں سامنے آئے گی وہ شاید آپ کا پورا نظریہ بدل دے۔ اور ایک گزارش، ویڈیو سکپ مت کیجیے، ہر سیکنڈ میں ایک نئی سوچ چھپی ہے، ایک ایسا پوائنٹ جو شاید آپ پہلی دفعہ سن رہے ہوں۔ اگر بیچ سے دیکھا تو مطلب ادھورا رہ جائے گا، اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے، بس ایک کلک اور سبسکرائب، کیونکہ ہر دور کا فتنہ نیا ہوتا ہے لیکن نظام وہی پرانا، ڈسیپشن اور دھوکا، اور صرف وہ لوگ بچیں گے جو صرف دیکھتے نہیں سوچ کر دیکھتے ہیں، کیونکہ اگلے کچھ منٹس میں ہم 7 سب سے خطرناک ڈیجیٹل فتنوں کو بے نقاب کریں گے تاکہ آپ میدان جنگ میں ایک مضبوط مومن بن کر کھڑے رہ سکیں۔ اللہ نور السماوات والارض۔ آپ نے کبھی سوچا ہے جب آپ انسٹاگرام، فیس بک یا ٹک ٹاک کھولتے ہیں تو آپ کے آنکھوں کے سامنے جو پرفیکٹ لائف دکھائی جا رہی ہے، کیا وہ سچ ہے یا صرف ایک ایلیوژن ہے، ایک کیئرفلی کیوریٹڈ ریالٹی؟ لوگوں کی مسکراتی ہوئی تصویریں، ایگزوٹک ویکیشنز، مہنگی گاڑیاں اور پرفیکٹ ریلیشن شپس، یہ سب دیکھ کر آپ کا دل کیسے ریئیکٹ کرتا ہے؟ حسد، اینگزائٹی یا پھر ایک چھپی ہوئی بے چینی جو دھیرے دھیرے آپ کی روحانیت کو کنزیوم کر رہی ہے؟ یہ شیطان کا ایک سمارٹ ٹریپ ہے۔ وہ آپ کو وہ دکھاتا ہے جو دوسروں کے پاس ہے، تاکہ آپ ان چیزوں پر فوکس کریں جو آپ کے پاس نہیں، اور اس فوکس کے ساتھ آپ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی اصلی نعمتیں، آپ کی صحت، آپ کا ایمان، آپ کا پریوار، سب کا شکر ادا کرنا کتنا ضروری ہے۔ تو کیا اس کا جواب صرف پیشنس ہے یا کچھ اور؟ نہیں، اس کا سولوشن ہے شکر، گریٹیٹیوڈ۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، لئن شکرتم لأزیدنکم۔ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گائیڈ کیا کہ دنیاوی معاملات میں ان لوگوں کو دیکھو جو آپ سے نیچے ہیں، نہ کہ ان کو جو آپ سے اوپر ہیں۔ کیا آپ ریڈی ہیں اپنی نظر کو ریسیٹ کرنے کے لیے؟ اپنا سوشل میڈیا فیڈ کلین کیجئے، ان اکاؤنٹس کو فالو کیجئے جو آپ کو اللہ کی یاد دلائیں، جو آپ کے دل میں شکر اور تسلی پیدا کریں۔ سوچئے، کیا آپ اب بھی اپنی ہیپینس کو فلٹرز اور لائکس کے حوالے کرنے والے ہیں، یا آپ اپنی روحانیت اور ایمان کو پرائیورٹی دینا چاہتے ہیں؟ اللہ نور السماوات والارض۔ آپ نے کبھی سوچا ہے جب آپ گوگل پر اسلام ٹائپ کرتے ہیں یا واٹس ایپ پر ایک رینڈم حدیث فارورڈ ہوتی ہے، کیا آپ پہلے ویریفائی کرتے ہیں یا بس کلک، شیئر اور فارورڈ کر دیتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس ایک انوسنٹ کلک کے پیچھے کتنا بڑا ٹریپ چھپا ہو سکتا ہے؟ ہر ایک ویریفائڈ لکنگ میسج، آرٹیکل یا پوسٹ، کیا وہ سچ ہے یا پھر جھوٹی معلومات کا ایک سٹل فلڈ ہے جو دھیرے دھیرے آپ کے اور ہماری امت کے ذہن کو کنفیوز کر رہا ہے؟ یہ شیطان کا ایک اور ماڈرن اسٹریٹجی ہے۔ اے آئی اور ڈیجیٹل ٹولز کے ذریعے اب ایسے فیک فتوے اور مس لیڈنگ پوسٹس جنریٹ کیے جا سکتے ہیں جو بالکل اصلی لگتے ہیں۔ رزلٹ، اختلاف، گمراہی اور نفرت، اور لوگوں کے دل ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں بس ایک فارورڈ کی وجہ سے۔ تو کیا اس کا سیدھا جواب اگنور کر دینا ہے یا بلائنڈ ٹرسٹ کرنا ہے؟ نہیں، اس کا جواب ہے تحقیق، ریسرچ اور ویریفیکیشن۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو۔ سورہ الحجرات آیت نمبر 6۔ سوچئے، کیا آپ صرف ایک واٹس ایپ فارورڈ پر کسی کی نیت اور کانٹینٹ کو جج کر لیں گے، یا آپ اپنے علم کو مستند سورسز سے، اوتھینٹک علماء اور اسکالر سے حاصل کریں گے؟ ڈیجیٹل دور میں آپ کے لیے اصلی ریسورسز اویلیبل ہیں،
ऑफिशियल यूट्यूब चैनल्स, वेरीफाइड वेबसाइट्स और आलिम से राब्ता करना, यही है वो शील्ड जो आपको मिस इन्फॉर्मेशन के सुनामी से बचाता है। क्या आप रेडी हैं अपनी आंखों और जहन को ट्रूथ फिल्टर से इक्विप करने के लिए, या फिर आप भी अननोइंगली इस झूठी मालूमात के सैलाब का हिस्सा बन रहे हैं? अल्लाहु नूरुस्समावाति वल क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका फोन सिर्फ एक डिवाइस नहीं बल्कि एक गेटवे बन गया है? एक क्लिक और आपको वो सब चीजें मिल जाती हैं जो आपके दिल और ईमान को धीरे धीरे खोखला कर रही हैं। गैर महरम बातें, बेहयाई कंटेंट, म्यूजिक और फजूल डिस्ट्रैक्शंस सब आपके बेडरूम तक सीधा आ गए हैं। क्या आप सोचते हैं कि ये सिर्फ हार्मलेस स्क्रॉलिंग है, या फिर ये वो ट्रैप है जो एल्गोरिदम्स के जरिए आपको और एंगेज करते जा रहे हैं? एक इनोसेंट क्लिक और फिर एक और फिर वो क्लिक आपकी हैबिट बन जाती है। शैतान कहता है जस्ट वंस, जस्ट अ पीक, और आपका वंस धीरे धीरे आपकी निगाह और दिल की हया को खत्म कर देता है। ये फितना इस तरह काम करता है जैसे दीमक लकड़ी को खोखला करता है। जो गुनाह पहले बड़ा लगता था अब नॉर्मल लगता है, और यही चीज आपके ईमान को साइलेंटली डैमेज कर रही है। ऑनलाइन इंटरेक्शंस अक्सर गैर महरम रिश्तों तक ले जाते हैं जो दिल और रूह दोनों के लिए टॉक्सिक हैं। तो क्या इसका जवाब सिर्फ इग्नोर करना है, या आप रेडी हैं अपनी आंखों और दिल दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए? इस्लाम ने हमें गद्दे बसर यानी निगाहों की हिफाजत का हुक्म दिया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और मर्दों को अपनी निगाहें नीचे रखने का हुक्म दो और औरतों को भी। सूरा अन-नूर आयत नंबर 30 और 31। ये हुक्म सिर्फ फिजिकल दुनिया के लिए नहीं, डिजिटल दुनिया के लिए भी है। जब आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हों, अपनी उंगलियों और नजरों पर कंट्रोल रखें। अपने आप को याद दिलाएं, अल्लाह आपको देख रहा है और आपके दिल और निगाहों का इल्म उसके पास है। फोन पर कंटेंट फिल्टर्स, ब्लॉकर्स और टाइम मैनेजमेंट का इस्तेमाल करें, और खाली वक्त में जिक्र, कुरान तिलावत या किसी फायदेमंद काम में इंगेज हो जाएं, क्योंकि एक खाली दिमाग ही शैतान का प्लेग्राउंड होता है। क्या आप रेडी हैं अपनी डिजिटल दुनिया को हलाल और पॉजिटिव स्पेस बनाने के लिए, या फिर आप अब भी इस साइलेंट ट्रैप में फंस रहे हैं? अल्लाहु नूरुस्समावाति वल क्या आपने कभी सोचा है कि आपके स्क्रीन पर जो वीडियो या ऑडियो दिख रहा है, क्या वो हमेशा हकीकत है, या फिर एक ऐसी इल्यूजन है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक्स ने क्रिएट की है? सोचिए, एक मुस्तनद आलिम की डीप फेक वीडियो वायरल हो जाए और उसमें वो ऐसी बातें कह रहा हो जो उसने कभी नहीं कही। कितना बड़ा फितना होगा। ये दज्जाल के फितने का एक छोटा सा प्रीव्यू लगता है। झूठी जन्नत और जहन्नम दिखाकर लोगों को कंफ्यूज करना। एआई एल्गोरिदम्स अब हमारी पसंद और नापसंद को हमसे बेहतर समझने लगे हैं, और फिर हमें एको चेम्बर्स में कैद कर देते हैं, जहां सिर्फ वही कंटेंट हम तक पहुंचता है जो हम सुनना चाहते हैं, चाहे वो सच हो या झूठ। क्या आपने नोटिस किया कि आप कभी सिर्फ सिमिलर ओपिनियंस ही देखते हैं? ये ट्रैप हमें हकीकत से दूर और अपने ही बनाए हुए ख्याली बबल्स में कैद कर देता है, और जब हक और बातिल के बीच फर्क मुश्किल हो जाए तो ईमान का सबसे बड़ा टेस्ट शुरू हो जाता है। तो क्या इसका जवाब सिर्फ इग्नोर करना है, या फिर आप रेडी हैं अपनी डिजिटल दुनिया और ईमान दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए? इस दौर में एक मुसलमान को होशियार और बाशऊर होना जरूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दज्जाल के फितने से बचने की दुआ सिखाई है, और आज के दज्जाल नुमा फितनों से भी हमें अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। किसी भी हैरत अंगेज वीडियो, पोस्ट या न्यूज पर यकीन करने से पहले तस्दीक लाजमी है। क्रिटिकल थिंकिंग आज के डिजिटल दौर में ईमान की हिफाजत का सबसे बड़ा वेपन है। अपने बच्चों और नौजवानों को डिजिटल लिटरेसी सिखाएं ताकि वो ऑनलाइन कंटेंट को परख सकें, और सबसे जरूरी, अपने ईमान की बुनियाद इतनी मजबूत बनाइए कि कोई भी एआई जनरेटेड झूठ उसको हिला ना सके। क्या आप रेडी हैं अपनी नजर, दिल और ईमान को एआई के साइलेंट ट्रैप से बचाने के लिए? अल्लाहु नूरुस्समावाति वल क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपका दिन, घंटे, हत्ता हफ्ते कैसे वैनिश हो जाते हैं? एंडलेस स्क्रोलिंग, बिंज वॉचिंग और वीडियो गेम्स, हर एक नोटिफिकेशन, हर एक लाइक एक छोटा डोपामीन ट्रैप है जो आपको वापस खींचता है। सोचिए, नमाज का वक्त निकल गया, कुरान पढ़ने का वक्त नहीं मिला, और अपने वालिदैन, अपनी फैमिली को देने वाला वक्त कैसे निकल गया। ये फितना साइलेंटली आपका वक्त, आपकी प्रोडक्टिविटी और आपके ईमान को चिपके हुए चेन्स की तरह पकड़ लेता है। इब्न अल-क़य्यम रहमहुल्लाह ने फरमाया था, वक्त को जाया करना मौत से ज्यादा सख्त है,
क्योंकि मौत तुम्हें दुनिया से काटती है जबकि वक्त का जिया तुम्हें अल्लाह से काट देता है। और सोचिए, ये डिजिटल वर्ल्ड इस तरह डिजाइन की गई है कि आप एंडलेस लूप में फंस जाएं बिना रियलाइज किए कि आपकी जिंदगी का सबसे कीमती रिसोर्स वक्त चुरा लिया गया है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? डिजिटल डिसिप्लिन और मकासद ओरिएंटेड लाइफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले, अपनी सेहत को बीमारी से पहले, अपनी दौलत को फकीरी से पहले, अपने फारिग वक्त को मशगूलियत से पहले और अपनी जिंदगी को मौत से पहले। अपने फोन पर स्क्रीन टाइम लिमिट सेट करें। हर नमाज से आधा घंटा पहले और बाद में फोन को हाथ ना लगाएं। एक छोटा सा डिजिटल डिटॉक्स। अपने दिन के लिए क्लियर गोल्स तय करें। जब आपके पास एक पर्पस होगा तो फजूल चीजों के लिए वक्त ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और याद रखें, कयामत के दिन आपसे आपकी जिंदगी के हर लम्हे का हिसाब लिया जाएगा। क्या आप रेडी हैं अपने वक्त को वापस लेने के लिए और इस थीफ को एक्सपोज करने के लिए? क्या आपने नोटिस किया है कि सोशल मीडिया का एक सिंपल स्क्रॉल कैसे आपके दिल को हार्ड कर देता है? ऑनलाइन डिबेट्स, तनकीद और गीबत, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट लगती है, लेकिन असली इम्पैक्ट क्या है? ये आपके ईमान को छुपके से खोखला कर रहा है और उम्मत के बीच का बॉन्ड तोड़ रहा है। सोचिए, फेक प्रोफाइल्स, अनोनिमस कमेंट्स, लोग जो कभी किसी के मुंह पर बोल्ड नहीं करते, वो ऑनलाइन अपनी डार्क साइड को रिलीज कर देते हैं। उलेमा और मोमिनीन पर तनकीद, छोटी बातों पर लड़ाई और फिरका वारियत, सब यहीं से स्टार्ट होती है। और आप जो एक बॉडी की तरह यूनाइटेड रहना चाहिए, कैसे ऑनलाइन एनिमीज बन जाते हैं। ये फितना साइलेंट है, वो आपके दिल को हार्ड कर देता है और आप अल्लाह की इबादत से मजा नहीं ले पाते। तो इसका सोल्यूशन क्या है? अदब और डिसिप्लिन। अल्लाह ने सूरा अल हुजरात 11-12 में हमें ऑनलाइन और ऑफलाइन अदब का कोड ऑफ कंडक्ट दिया है। ना किसी मर्द का मजाक उड़ाओ, ना किसी औरत का, ना एक दूसरे को ऐब लगाओ, ना बुरे नामों से पुकारो। गीबत से बचो, क्योंकि गीबत करना अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर है। जब भी आप ऑनलाइन कमेंट या रिप्लाई करने जाएं, एक लम्हा रुककर सोचें, क्या मैं ये बात इस शख्स के सामने कह सकता हूँ? क्या इससे उम्मत में जोड़ होगा या तोड़? क्या अल्लाह राजी होगा? अपनी जबान या इस केस में अपनी उंगलियों को काबू में रखें। अगर कुछ अच्छा नहीं कह सकते तो खामोश रहना बेहतर है। बहस और आर्ग्यूमेंट्स में टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि आप उस वक्त को दीन सीखने, किसी की मदद करने या कंस्ट्रक्टिव काम में लगाएं। क्या आप रेडी हैं इस एको चैम्बर के ट्रैप से बचने के लिए और अपने दिल को सॉफ्ट और ईमान को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए? क्या आपने कभी नोटिस किया है, लोग अब घंटों, कभी कभी दिन भर वर्चुअल वर्ल्ड्स में खो जाते हैं? मेटावर्स, VR और डिजिटल रियलिटीज, जहां हकीकत और फैंटेसी की बाउंड्रीज मिक्स हो गई हैं। क्या ये सिर्फ एंटरटेनमेंट है या फिर एक ऐसी ट्रैप है जो आपके असली पर्पस को चुरा रही है? सोचिए, एक अलग अवतार, एक झूठी जिंदगी, पॉइंट्स और रिवॉर्ड्स के लिए जीना, लेकिन असली जिंदगी, असली जिम्मेदारियां और अपना रब, वो सब पीछे रह जाते हैं। ये फितना आपको अपने असली मकसद से दूर कर देता है। अल्लाह ने हमें इस दुनिया में अपना खलीफा बनाया और हमारा काम है इबादत, इंसानियत की खिदमत और रूहानी तरक्की। वर्चुअल दुनिया का एक्सेसिव यूज आपको फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों तौर पर वीक कर देता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? बैलेंस और वसातिया। टेक्नोलॉजी का यूज करें, मगर अपनी लाइफ पर उसका कंट्रोल मत होने दें। अपनी असली दुनिया से जुड़े रहिए, रिश्तों को वक्त दें, मस्जिद जाएं, कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करें, अपने आप को हमेशा याद दिलाएं। असली जिंदगी वो है जो आप स्क्रीन ऑफ करने के बाद जीते हैं। अपने बच्चों को भी वर्चुअल ट्रैप्स के डेंजर्स से अवेयर करें और उन्हें रियल वर्ल्ड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रखें, क्योंकि असली कामयाबी वर्चुअल पॉइंट्स और डिजिटल फेम में नहीं, बल्कि आखिरत की तैयारी और अल्लाह की रजा में है। क्या आप रेडी हैं अपनी वर्चुअल एडिक्शन से छुटकारा पाने और अपनी असली जिंदगी में मजबूत मोमिन बनने के लिए? भाइयों और बहनों, ये हैं 7 सबसे बड़े डिजिटल फितने जो आज हमारी उम्मत को घेर रहे हैं। सोशल मीडिया का धोखा, झूठा इल्म, हराम का आसान रास्ता, AI का फरेब, वक्त का ज़या, ऑनलाइन नफरत और वर्चुअल दुनिया का सराब। हर फितने का इलाज अल्लाह ने कुरान और सुन्नत में हमें दिया है। ये दुनिया एक इम्तिहान है और डिजिटल दौर इसका नया बैटलफील्ड। डर कर भागना नहीं, होशियारी, इल्म और तकवा के साथ खड़े रहिए। टेक्नोलॉजी को टूल बनाइए, मास्टर नहीं। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ सिखाया तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन रखें ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंचे।